السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زید دلواز۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں SHO سٹی پولیس اسٹیشن ناروال توحید الرحمان صاحب، جو کہ ایک ایماندار اور دبنگ پولیس آفیسر ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی بایوگرافی اور ناروال کے امن و ایمان کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سٹی پولیس اسٹیشن ناروال خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کرائم کے حوالے سے آپ کو میں آگاہ کر سکوں۔ میرا نام جیسا کہ آپ نے خود ہی اپنے انٹروڈکشن میں لیا ہے، توحید الرحمان سب انسپیکٹر ہے۔ میں 2003 میں پولیس سروس جوائن کی۔ میں نے اپنا میٹرک اور کالج لاہور FC کالج اور گورنمنٹ کالج آف سائنس سے یہ اپنی ایجوکیشن کی۔ اس کے بعد میں بطور ASI پولیس میں بھرتی ہوا اور پروموشن کے بعد میں بطور SHO موجودہ تھانہ میں تعینات۔ یہ آپ ناروال کی امن و امان کی صورتحال کے بارے میں۔ سر، ناروال میں امن و امان کیا صورتحال ہے؟ ناروال جو ہے یہ ایک پرانا قصبہ ہے، اس کا ایک پس منظر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، اس کی پرانی دشمنداری، غارت خوری اور قتل و غارت کے حوالے سے اس کی ایک اپنی تاریخ رہی ہے ناروال۔ یقیناً اس کی جو ماضی ہے ناروال کا، وہ کافی دشمنداری، قتل و غارت اور غارت خوری کے حوالے سے اس کا ایک نام رہا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں خوش قسمتی ہے ہماری اور پولیس اور انتظامیہ کی آفت ہے کہ موجودہ دور میں نہ تو کوئی ایکٹیو دشمنداری ہے، اینیمیٹی ہے، اور نہ ہی کوئی قتل و غارت، کوئی خوف اور دہشت کی کوئی ایسی فضا نہ رہا۔ موجودہ اگر ہم دیکھیں صورتحال کو، جو اس کی جو ہے ایک عوام میں ایک مجموعی طور پہ ایک تحفظ کا احساس ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جرائم یہ تو ختم نہیں ہو سکتے، کام ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو ایک مجموعی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک خوف اور دہشت اور ایک وہ جتنے بھی پرانے وہ تقریباً اب ختم ہو چکی ہیں یا وہ خاموش ہو چکی ہیں۔ تو مجموعی طور پہ میں یہی کہوں گا کہ ناروال میں امن و امان کی صورتحال اللہ کے کرم سے بہترین تو نہیں لیکن کافی بہتر ہے۔ SHO بننے کے بعد کرائم کو روکنے کے لیے آپ کس حد تک کامیاب ہوئے اور اس کو روکنے کے لیے کیا مسائل درپیش ہیں؟ اچھا، تھانہ میں بطور SHO مختلف کچھ رورل ایریاز کے جو تھانہ جات ہیں اور جو شہری ایریا کے تھانہ جات ہیں، ان میں مختلف جو ہے ورکنگ کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے، شہر کا ایک علیحدہ اور گاؤں کا ایک علیحدہ۔ لیکن جہاں تک ناروال سٹی کی بات ہے، ناروال سٹی میں میری یہ دوسری تعیناتی ہے اور بطور SHO میں تعینات ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے جو میں نے کام کیا ہے کہ جو موجودہ سول سوسائٹی اور موجودہ کمیونٹی ہے، ان کے نمائندوں کو میں نے انوالو کیا ہے کرائم کے حوالے سے۔ ہمارے جو ناروال سٹی میں سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے۔ موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا ہے، اس میں ایک تو کمیونٹی مسجد ممبر محراب پہ جو ہمارے خطباء اور علماء ہیں، ان کو ہم نے آن بورڈ لیا۔ ہم نے کمیونٹی کو جو ہے وہ ان میں شعور اجاگر کیا۔ ہم نے کیبلز کے ذریعے مختلف ایڈز دی لوگوں کو میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ اپنے موٹر سائیکلز کی جو ہے یہ ہینڈل لاک لگائیں، اس کو محفوظ جگہ پہ کھڑی کریں اور اپنی نظر کے سامنے اس کو موٹر سائیکل، یہ تو موٹر سائیکل چوری کے حوالے سے۔ دوسری جو چیز ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ جناب ہمارے DPO صاحب ناروال کی ہدایات بھی یہی ہیں۔ جو ناروال سٹی کے اندر ٹریفک کا کافی جو ہے وہ مسائل ہیں، ہم نے کافی حد تک ہم نے TMA کے ساتھ ہم نے مل کے تجاوزات کے حوالے سے کام کیا۔ جو تجاوزات جو ہیں ناروال میں
वो अब कदरे बेहतर जो है वो सूरत हाल है। फुटपाथ और तकरीबन बाज़ार जो है वो खुले हो चुके हैं। और तीसरी बात ये है कि हमने नारवा सिटी में तीसरा काम हमने ये किया है कि हमने डिस्प्ले ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स जो है मुख्तलिफ नाकाबंदियों के जरिए, ताकि आम आदमी में जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो कि हमारी पुलिस खड़ी है, नाके पे खड़ी है, और जो जराए पेशा लोग हैं वो इससे खौफ खाएँ और अपनी जो है वो नापसंदीदा सरगर्मियों उससे बाहर आ जाए। ये हमने 3 काम किए हैं और इंशाअल्लाह यकीनन बेहतरी की गुंजाइश हर काम में मौजूद होती है और हर जगह मौजूद होती है, और कभी भी कोई भी बेहतरीन नहीं हो सकता। लेकिन हम अपने तय हम बहुत अब कोशिश कर रहे हैं दिन में और रात के। तीसरा फैक्टर इसमें यह है कि धुंध के और इस सर्द मौसम के शदीद मौसम में हमने जो नाइट पेट्रोलिंग है हमने उसमें इजाफा किया है। हम रूटीन से हट के, जहां हमारी आगे 2 मोबाइल्स गश्त करती थी, अब हमारे साथ मोबाइल्स के साथ हमारे 2 स्क्वाड्स भी जो है वो रात को गश्त करते हैं। तो इस हवाले से यकीनन बेहतरी आएगी और आ भी रही है। देखने में आ रहा है चोरी और डकैती की वारदात माजी की तरह खूब पजीर हो रही है, पुलिस इनको रोकने में नाकाम क्यों है? अच्छा, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि डकैती और चीज़ होती है, चोरी और चीज़ है। डकैती ये होती है कि किसी को बज़ोर असला ज़बरदस्ती असला दिखा के उससे उसका माल जो है वो छीन लिया जाए, उसे हम कहते हैं रॉबरी कहते हैं, या हम अल्फाज में डकैती कहते हैं। जबकि चोरी उसे कहते हैं कि मालिक की रजामंदी के, मालिक के इल्म के बगैर उसकी चीज़ को जो है वो उठा लेकर चोरी कर लिया जाता है। अल्लाह के करम से डकैती और रॉबरी नारवा में तकरीबन जो है ये 1 माह 1.5 माह से तकरीबन ये ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि हमने कुछ मेन जो टारगेट्स थे वो हमने अचीव किए। हमने जो बड़े 2-3 नाम हैं जो बदनामी जुबान है, हम उनको रद्द करने में कामयाब हुए, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो जराइम पेशा हैं, छोटे छोटे डॉक्टर वो भी जो है वो रूपोश में और काफ़ी आता है। जहाँ तक चोरी की बात है तो नारवल में एक सीज़न आता है, बल्कि हर, जैसा कि नारवल भी एक कदीम शहर है, हर कदीम शहर में जो भी पुराना शहर होगा वहाँ पे तंग गलियाँ, ये बाज़ार, महल्ले वहाँ मौजूद होते हैं। सर्द मौसम में शदीद धुंध में पुलिस अपने तक काफ़ी पेट्रोलिंग गश्त कर रही है, लेकिन इसके बावजूद जो चोरी की वारदात है वो इस धुंध में हर साल होती है, और हर साल की तरह जो है ये इस साल भी, लेकिन उसमें काफ़ी नुमायां कमी भी आई है। और हमने एक गैंग हमने ट्रेस भी किया है, पकड़ा भी है, और इंशाल्लाह जल्द जो है वो 1-2 गैंग हम पकड़ेंगे। कम ज़रूर हुई है, लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि ख़त्म हो गई है तो ऐसा नहीं है। यकीनन जो है ये मौजूद है, ये वाली वारदात चोरी की। और ऐसी चोरी होती है जब घरों में जब बाहर ताले लगा के अपने रिश्तेदारों के पास या अपने किसी दूसरे शहरों में चले जाते हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए, और पीछे से जो है ये ताला उनके तरफ हो गई। तो इस हवाले से हम जो है लोगों में मस्जिदों में भी लोगों में शऊर बेदार कर रहे हैं। अपने जो नुमाइंदे सोसाइटी के मुख्तलिफ शहरी जो कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनकी कमेटियाँ उनको भी हम जो है ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि जब भी आप अपने महलों में अपने आप ऐलान करवाएँ, अपने लोगों को बताएँ कि जब आप बाहर जाएँ या आप दूसरे शहर में जाएँ तो घर को कभी भी जो है वो इस शदीद धुंध में आपको छोड़ना नहीं चाहिए ताला लगा। अगर ताला लगाना है तो वो दूसरा जो नाक वाला बाहर से नजर ना आए, और अपनी लाइट्स वो ऑन रखें ताकि बाहर वालों को तो बस ये 2 जो है आपको मैंने बता दिए कि चोरी और डकैती, लेकिन ये है कि काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। अभी जहाँ तक मोटरसाइकिल चोरी की बात है वो मैंने आपको आगे भी बताया, जो 3 हमारे जो मेन पॉइंट हैं 4, जहाँ पे मिसाल पर हॉस्पिटल है, नादरा दफ्तर है, या जिन जगहों पे पार्किंग नहीं थी मैंने वहाँ पार्किंग का वो इंतज़ाम किया।
वहाँ एक मैकेनिज्म बनाया कि जो भी मोटरसाइकिल आए वहाँ पे जो भी विजिटर आए वो अपनी मोटरसाइकिल जो है वो पार्क करीब काफ़ी हद तक मैं जो है ये कामयाब हो रहा हूँ और यकीनन इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसमें काफ़ी बेहतरी है। जी सर, क्या क्राइम को रोकने के लिए पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल, ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है और हमेशा की तरह पुलिस से ये सवाल किया जाता है। वक्त के साथ साथ जहाँ साइंस के हर शोबे में साइंस की जिद्दत और साइंस के जो है वो कमालात और साइंस से इस्तेफ़ादा हासिल किया जा रहा है, पुलिस में भी इससे साइंस की नई टेक्नोलॉजी से यकीनन फ़ायदा उठाया जा रहा है। जहाँ तक हमारी पंजाब पुलिस की वर्किंग की बात है, हमारे काफ़ी हद तक हम नई टेक्नोलॉजी हम उसको इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारा एविडेंस कलेक्शन है। कोई भी मौका वारदात होती है या जाए वक़ूआ होता है, वहाँ पर हम फिंगरप्रिंट्स उसको कलेक्ट किया जाता है। मुल्ज़मान की जो है मूवमेंट अगर कोई सीसीटीवी वगैरह होगा वहाँ पे हम उससे इस्तेफ़ादा करते हैं। इसके अलावा मुल्ज़मान के या अक्यूज़्ड पर्सनस के हम CDRs हम हासिल करते हैं। जियो फेंसिंग करवाई जाती है जो कि एक बहुत ही जो है ये जदीद ये टेक्नोलॉजी है और यकीनन हम इसमें हम कामयाब भी होते हैं और मुल्ज़मान को ट्रेस करने के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे DNA टेस्ट्स हैं। DNA टेस्ट करवाया जाता है जो कि तकरीबन उसका रिज़ल्ट 100% है और पॉलीग्राफिक टेस्ट है, मुख्तलिफ जो है टेस्ट। इसके अलावा जो हम मनशियात वगैरह असला वगैरह जो हमारी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है लाहौर में, वहाँ से हम जो है ये तकरीबन हर अपना नारकोटिक्स वेपन्स फायर आर्म जितने भी हैं वहाँ से हम इसका जो है वो टेस्ट करवाते हैं बाकायदा और उससे जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं और इससे हमें काफ़ी हेल्प हमें मिलती है। और आज के दौर में जब आप पुलिसिंग की बात करें तो बग़ैर साइंस और टेक्नोलॉजी और बग़ैर जदीद ये जो लैब्स हैं इनके बग़ैर तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम एक अच्छी पुलिसिंग हम इसके बग़ैर हम कर सकते हैं। ये बताएं सर, नारवल में मंशियात फरोशी का धंधा रूट पर है जो कि नौजवान नस्ल के लिए नासूर है, पुलिस इसको रोक क्यों नहीं पा रही? अच्छा, जहाँ तक मंशियात की बात है, मंशियात की तारीख़ भी इतनी ही पुरानी है जितनी कि बनी नौ इंसान की है। अगर आप देखें तो इस्लाम के से पहले या इस्लाम के बाद शराब नोशी वगैरह वगैरह ये नशे जो है ये आम रहे हैं। तो गोया कि इंसानी सोसाइटी और नशे का चोली दामन का साथ है। नारवल एक पुराना कस्बा है और गिरदोनवा एक बॉर्डर एरिया का ज़िला है। गिरदोनवा पे भी इसमें काफ़ी देहात वगैरह आते हैं। नारोवाल में जहाँ मैंने आगे बात की जिस तरीके से कि जो एक कत्ल की दुश्मनी और बत्ताखोर और बत्ताखोरी वगैरह ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। नारोवाल में जो बड़े बड़े जो मंशियात डीलर्स हैं जो एक ब्रांड का नाम रखते थे बदनाम ज़माना, हमने जो बड़े बड़े डीलर्स और बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि नारवल पुलिस उनको भगाने में कामयाब हो गई। मौजूदा दौर में, मौजूदा इस वक्त में नारवल में कोई भी ऐसा वो बड़ा नाम नहीं है मंशियात के हवाले से। होता ये है कि जो बड़े नाम होते हैं पुलिस सबसे पहले उनको कवर करती है। जो बड़े नाम हैं, जो बड़े डीलर हैं बदनाम ज़माना, तकरीबन सभी जेलों में हैं या वो नारवाल से कूच कर चुके हैं, फ़रार हो चुके हैं। जो छोटे मोटे हैं
जो असला ये मंशियात जो बेचते हैं, ज़ाहिर है ये इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता किसी भी सोसाइटी में, लेकिन कम ज़रूर की कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम अपने ताईं हम भरपूर हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम FIRs भी हम दे रहे हैं, और जिस तरह का कोई डीलर है या जिस तरह का उस तरीके से हम जो है उसको डील करते हैं, और काफ़ी हद तक जो है इसमें बेहतरी भी आई है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश यकीनन अब भी मौजूद है। बताएं सर, बताइएगा पुलिस को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं और किन किन चीज़ों की दरकार है? ये भी एक हमेशा की तरह पुलिस से किया जाने वाला सवाल है, और अच्छा सवाल है किसको हम कहते हैं, बल्कि सदाबहार अगर आप कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक सदाबहार सवाल है कि हर सहाफ़ी या हर पूछने वाला एंकर ये ज़रूर पूछता है कि जी आपको बताएंगे आपको क्या मुश्किलात हैं। तो बात यह है कि हमें मुश्किलात तो काफ़ी, बल्कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप कहें कि कोई मुश्किल नहीं है तो ये गलत बात है। हर डिपार्टमेंट में, हर काम में, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई मुश्किलात तो ज़रूर होती है। जी बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक पुलिस की बात है, स्पेसिफिक अगर आप पूछें, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मुझसे आप पूछें तो मैंने सबसे पहले एक नंबर पे मैंने रखा है कि जो हमारे आउटडेटेड लॉज हैं, जो हमारा बेसिक टूल है जिसके ज़रिए हम ऑपरेट करते हैं, हमारा जो प्रोसीजर है, यानी कि हमने मुल्ज़िम कैसे पकड़ना है, FIR कैसे देनी है, वर्किंग हमने कैसे करनी है, अदालतों में कैसे पेश, हमारा तकरीबन 1 सदी पुराना कानून है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, यानी कि तकरीबन सदी से ज़्यादा पुराना हमारा ये कानून है, जहाँ 100 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। यकीनन मौजूदा दौर में एक बेहतर एक कानून कवानीन की ज़रूरत है, फौजदारी कवानीन की। सबसे पहले मैं इसको जो है ये कहूँगा कि पुलिस की मुश्किलात का एक बुनियादी सबब और एक पहले नंबर पे वो ये है कि जो बुनियादी जो पुलिस की जो वर्किंग है, प्रोसीजर जिसके तहत उसने वर्किंग की है, उसमें यकीनन जो है अभी वो तब्दीली की वो होनी चाहिए, ताकि मौजूदा दौर से इसी तरीके से लॉ ऑफ एविडेंस है जो हमारा कानून शहादत है, ये जिस दौर में बनाया गया वहाँ उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह या टेलीफोन उस वक्त वो नहीं था। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो नई टेक्नोलॉजी और जो नए सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं वो जो है उनको भी शहादत के तौर पे उनको कवानीन शहादत में एडजस्ट किया जाए, ताकि हमारी जो वर्किंग है वो आसान हो, ज़्यादा वो हमें उससे जो है वो इस्तिफ़ादा करने का मौका मिले। CRPC हमारी PPC और लॉ एविडेंस ये मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे नादरा का कोई ID कार्ड वगैरह चाहिए या कोई भी, हमारा सिस्टम काफ़ी हद तक कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है। पोलकॉम, फ्रंट डेस्क, हमारे तकरीबन हमारी जितनी भी वर्किंग है वो इस वक्त कंप्यूटराइज है। हम एक क्लिक के ज़रिए किसी भी ID कार्ड को हम वो चेक कर सकते हैं, या किसी हमारा जो डाटाबेस है जस्ट लाइक नादरा वो हमने मेंटेन किया, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अगर आप कहीं भी आप किसी को पकड़ लें, उसका डाटा एंटर करें और वो उसकी जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी हमें नादरा FIA वगैरह के साथ बेहतर जो है वो उसके साथ कोऑर्डिनेशन और जो है हमें असिस्टेंस जो हमें चाहिए वो हमें मुयस्सर होनी चाहिए, ताकि हम किसी भी नंबर, किसी भी CNSE का हमें उसी वक्त जो है हमें वो रिकॉर्ड हमें मिल सके। एक तो टेक्निकल असिस्टेंस हमें होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो हमेशा की तरह हर पुलिस अफसर और हर पुलिस डिपार्टमेंट हर से जो वाबस्ता है वो जो है बताएगा कि जी हमारे पास सोर्सेज की कमी है। सोर्सेज में एक तो मैन पावर आ जाता है कि जी मैन पावर जो हमारी है, हमारी जो मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, नफरी जिसे आप अल्फाज में कहेंगे, आबादी का तनासब देख लें और मौजूदा दौर में हमारी
जो पुलिस की जो नफरी है वो अगर उसका तनासब देखें किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक के करीब करीब भी ना है। एक बहुत बड़ी आबादी को एक छोटा सा जो है वो थाना और उसमें थोड़े से मुलाजमीन वो कवर कर रहे हैं। तो नफरी जो है वो हमारा एक तो आबादी के तनासब के लिहाज से हमारी नफरी होनी चाहिए ताकि हम जराइम को जो है वो बेहतर वो हम टैकल कर सकें। इसके बाद आ जाता है कि जी वसाइल है, हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए या तफ्तीश के लिए जो बर वक्त जो है वो तफ्तीश के लिए जो भी फंडिंग्स है या जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो यकीनन बर वक्त अवेलेबल होने चाहिए और होते भी हैं यकीनन, लेकिन इसमें मज़ीद जो है वो बेहतर किया जा सकता है इसको। और इसके अलावा हमारी जो ज़ाहिर है जब नफरी जब थोड़ी होगी, मैन पावर हमारे पास सोर्सेज थोड़े होंगे तो वर्किंग आवर्स जो है हमारे वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं तो यकीनन हमारे पुलिस का जो है वो बिहेवियर जिसकी काफ़ी पब्लिक जो है वो शिकायत करती है कि जी बिहेवियर, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वर्किंग आवर्स जो है ये हमारे पुलिस में बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये 15-15 घंटे 20-20 घंटे जो है वो नहीं कि 24-24 घंटे भी। तो एक तो इसको जो है वो नफरी जो है वो प्रॉपर उसे वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो है हमारी वर्किंग जो एनवायरनमेंट है, हमारा लिविंग जो है हमारी कंडीशंस जो हमारे जो है अगर आप पे पैकेज देखें तो वो भी जो है हमारी वर्किंग लिहाज से मैच नहीं करते, उसमें भी हमें इंसेंटिव्स की जो है वो ज़रूरत है। तो ये मुश्किलात हैं यकीनन, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम अपना काम दी बेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद हम मैक्सिमम हमें रिज़ल्ट दे रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। लेकिन ये पुलिस कभी भी खुद कामयाब नहीं हो सकती जब तक आवाम का इसके साथ कोऑपरेशन ना हो या कम्युनिटी जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व ना हो। तो मेरा मैसेज आपके ज़रिए यही है कि पुलिस के साथ ताउन करें, ये आपकी अपनी पुलिस है, इस पे एतमाद करें, यकीनन आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह ताला आपका नासर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। जी तो हमारे साथ मौजूद थे SHO पुलिस स्टेशन नारोवाल जुर्मान साहब। इनका कहना था कि पुलिस के साथ कोऑपरेट किया जाए, इनके रिसोर्सेज को इंक्रीज़ किया जाए और इनके टेक्निकल इशू को सॉल्व किया जाए, जिससे पुलिस की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।